شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ تعریف ہے اس خدا کی جس نے انسان کو یہ عقل و فہم دیا کہ ہم اس کی باتوں کو سمجھیں، کیونکہ روح القدس ہمارا استاد ہے جس نے وہ طے کی باتیں جو بھید کی باتیں ہیں ہم پر ظاہر کی ہیں۔ میرے دوستو جو فرینڈشپ ایونجلیزم میں مصروف ہیں، خداوند آپ کی خدمت کو بڑھائے۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں اور یورپ میں اور پاکستان میں جتنے دوست فرینڈشپ ایونجلیزم میں ہیں، آپ کی اس ساری کاوش کو ہم سلام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بڑھتے چلے جائیں اور متی 5ویں باب سے 7ویں باب تک کے سارے اس قاعدے کو پورا کریں، کیونکہ مسیح کی یہی تعلیم ہے۔ ہمارا جو مضمون اور ٹاپک ہے یا جو ہمارا مقصد ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دراصل فلسطینی ہیں کون۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جو ہائی بریڈ کی اولاد ہے، اور یہ قوم باب نوح کے طوفان کے بعد اب کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ یہ نوح کے بیٹے حام کی بیوی ہے جو ہائی بریڈ کی اولاد تھی، اور حام کی بیوی جو ہائی بریڈ کی بیٹی تھی، ان سے جو بچے پیدا ہوئے ان کی اولاد میں یہ لوگ ہیں جو فلسطی ہیں۔ اور یہ فلسطی جب یونان یعنی کہ اسکندر اعظم نے اس پر کنٹرول کیا، اسرائیل پر، یروشلم پر، تو اس وقت بھی یہ قوم وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے انہیں فلسطینی کہنا شروع کر دیا۔ فلسطی سے فلسطینی ہو گیا اور انگلش میں فلسطینی آ گیا۔ تو جب ان کی حرکات کیا ہیں کہ یہ جب اپنے باپ کے ساتھ تھے، یعنی کہ نوح کے ساتھ سم، حام، یافت تھا، تو یہ تینوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، سم، حام اور یافت، کیونکہ حام کے 5 بیٹے تھے اور 5 ہی لڑاکو تھے اور دادے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، چاچوں کی تو پرواہ ہی نہیں کرنی، اور دادے کو تو انہوں نے ویسے ننگا کر دیا۔ کنعان نے اپنے دادے کو ننگا کر دیا، اس کو بے عزت کر دیا۔ یہ وہ کنعان ہے۔ لیکن یہ جو ملک نام کنعان ہے، یہ آدم نے بھی اپنے پوتے کا نام یہ کنعان رکھا تھا۔ تو یہ بعد میں بھی کنعان آیا، یہ اصل میں وہی نام چل رہا ہے۔ تو جب یہ جھگڑا ہوا تو نوح نے کہا کہ بھائی تم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تم اس طرح کرو کہ الگ الگ ہو جاؤ۔ اب کہ حام کے بیٹوں کا کیا طریقہ تھا کہ جو بھی اس کا پوتا پیدا ہوا اس کے نام پر پہاڑی کنٹرول کر لی، کہا کہ یہ اس کا ہے، امور کی پہاڑی کو اموریا کہہ دیا، سنی کے پہاڑی کو سینا کہہ دیا۔ تو اپنے بچوں کے نام پر پہاڑیوں کے نام رکھ لیے۔ کوش نے اپنے نام پر کشمیر رکھ لیا۔ یہ جو جس کو آج ہم کشمیر پر جس پہ بڑیاں لڑائیاں کر رہے ہیں، یہ کوش کا پہاڑ ہے، اور انڈیا میں باقاعدہ طور پہ کوشی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کا نام ہی کوشی ہے، اور اس کا نام کشمیر ہے۔ جتنے اچھے پہاڑ تھے یہ کوش نے، جو حام کا بیٹا تھا، اس نے اپنے نام پہ رکھے، کیونکہ وہ بڑا ایک جائنٹ تھا، قاداور شخص تھا، اور اس کے قاداور ہونے کا یا نڈار ہونے کا یا بہادر ہونے کا یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ خود غرض ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے انڈیا کے بھی پہاڑوں کو اپنے نام پہ، ان کا کام ہی یہ تھا، پہاڑوں کو اپنے نام کرتے تھے۔
सनई ने अपने नाम पर सीना के जितना भी वो एरिया इजिप्ट के साइड पे वो अपने नाम कर लिया, और उसकी एक पहाड़ी का नाम हुरब है। और अब बेटे ने क्या किया, जो नमरूद है उसने अपने नाम पे बुर्ज बनाना शुरू कर दिया। ये उनकी आदत में शामिल है कि जगह को अपने कब्जे में करो और अपना नाम उस पे लगा दो और कहो कि ये मेरा है, क्लेम कर दो। और फिर नूह ने ये कहा हाम को कि तू अपने बच्चों को ले और खुला मैदान है, तू उस दूसरी तरफ चला जा। और फिर उसने अपने बेटे के नाम पे मिस्र रखा। ये मिस्र हाम के पोते का नाम है, बेटे का नाम है। तो उसने अपने उस एरिया को कंट्रोल कर लिया। अब जो याफत है वो अपने बच्चों को लेकर ऊपर को चला गया, तुर्की की तरफ शमाल में चला गया, और उधर से फैलता 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 आगे निकलता गया है। और अब सिम का एरिया जो है, उसने कहा मेरा एरिया यही एरिया है जो मेरे खुदा का है, जो मेरे बाप का है, जो मेरे खुदा ने मेरे बाप को कहा कि मैं तुझे वो जगह बताता हूँ जहाँ तुझे रहना है, जहाँ पर कुर्बानी देनी है। और जहाँ पर नूह ने कुर्बानी दी वो मुल्क केनान है, वो मुल्क यरूशलेम है, वो मुल्क इसराइल है, वो मुल्क जिसको आप अपनी ज़ुबान में फ़लस्तीन कहते हो, ये वो है। और सिम ने फिर कहा केनान को कि अपने बच्चों को ले जा, ये क्यों इधर फंसे हुए हैं, जब तुझे जगह दे दी गई है तो तू उस जगह पे चला जा। लेकिन हाम की क्या बात है, हाम के बच्चे तो उसकी सुनते ही नहीं, वो तो हैं हाइब्रिड के खून से। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जगह हमारी है। नूह ने कहा ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम चले जाओ उतर मिस्र में, ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये सिम की जगह है। सिम की यहाँ पर बादशाही है, वो सिद्दक सालम का बादशाह है, वो सच्चाई और अमन का बादशाह है, वो झगड़ालू नहीं है, ये अमन की सरजमीन है। तो इस जगह को कभी भी सिम से ना लिया जाए, क्योंकि ये सिम का हिस्सा है। जो याफत का हिस्सा है वो याफत का है, याफत से ही जापान है। मैं अगले दौर में, अगले टाइम में ये जो यकूब के 12 बेटे हैं, इन पर ज़रूर आपके साथ बात करूंगा कि कौन से उसके बेटे का कौन सा मुल्क है। लेकिन अभी की ये बात है कि ये ज़बरदस्ती उस जगह पर फंस के बैठ गए। जैसे किसी ने कहा ना कि उसने घर बेच दिया, और जब घर बेच दिया तो जिसने वो घर ख़रीदा उसने कहा कि जी अपना सारा सामान उठा लो, ले जाओ, क्योंकि अब ये जगह मेरी है। तो उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, आपने घर बेच दिया, हमने पैसे ले लिए हैं, लेकिन ये एक किल्ली है, ये एक खूंटी है जो हमने नहीं बेचनी, ये हमारी है। उसने कहा खूंटी की क्या बात है, वो सुलह पसंद शख्स था, मोहब्बती था। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो ये खूंटी रहने दो। जब खूंटी की बात ख़त्म हो गई, लिख लिखा में आ गया, वो चंद दिनों के बाद जब वो अपना सामान लेके आए, उसके बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे सब उस घर में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, खुश हैं। उसने बाहर से, जिसने खूंटी का कहा था ये मेरी है, उसने मरी हुई बिल्ली ला के बाहर से तो उस खूंटी पे लटका दी। अब बिल्ली तो वैसे ही बदबूदार है, मरी है, और उसकी बदबू फैल रही है, सारा घर बू से भर गया। उन्होंने मालिक को उन्होंने उस शख्स को बुलाया जिससे घर ख़रीदा था कि भाई ये क्या तमाशा है, तुमने ये इस किल्ली के ऊपर कहा था कि ये मेरी है, मैं ये नहीं मैंने बेचनी, तो तूने अब मरी हुई बिल्ली उस पर टांग दी है। उसने कहा भाई ये मैंने पहले बताया था, ये किल्ली मेरी है और बिल्ली भी मेरी है, भले वो बिल्ली मरी है या भले वो बिल्ली ज़िंदा है, वो इसी पे ही रहेगी। तुमने रहना है तो रहो, नहीं तो छोड़ जाओ। अब झगड़ा शुरू हो गया। अब वो कह रहा है कि ये किल्ली मेरी है और बिल्ली भी मेरी है, भले जिंदा है या मरी है, और घर वाले कहते हैं कि ये तो घर हमारा है। अब यही झगड़ा है। ये फ़लस्तीनी जो हैं, ये वो किल्ली है जिस पर हाइब्रिड की बिल्ली टंगी हुई है, जिसने पूरी दुनिया को, इन फ़लस्तीनियों ने, हाइब्रिड ब्रीड के बच्चों ने पहले पूरी दुनिया को
नूह के टाइम पे पानी में डुबोकर मरवाया। खुदा ने इतना बड़ा पानी का तूफान लाया कि पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। अब यही किल्ली, यही बिल्ली और यही जो हाइब्रिड की नस्ल है, ये जो फ़िलिस्ती हैं, जो अब के फ़लस्तीनी हैं, इन्होंने इस पूरी दुनिया को भी मरवाना है। अब रही मुसलमानों की बात, जो कहते हैं ये हमारे भाई हैं। अब इनकी क्या, ख़ास तौर पे सारे मुसलमान नहीं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की बात है। अब ये कह देते हैं कभी अफ़गानिस्तान को हमारा भाई है, उनको बेचारों को मार पड़वा देते हैं। कभी कह देते हैं कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनको भी मार पड़वा देते हैं। कभी कहते हैं ये जो ईरानी है ये काफिर हैं। जब उनका कोई साथ देने वाला फिर कह देते हैं हमारे भाई हैं। कभी ये ईरानियों को जिसको इन्होंने पिटाई करवानी है उसके ये रिश्तेदार बन जाते हैं। अब ये कह के कि ये फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, और मार उनको पड़ेगी, और मार पड़ेगी, क्योंकि जो अमेरिकन है उनको भी हिस्ट्री का पता है कि ये हाइब्रिड की नस्ल है। जो यहूदी हैं उनको भी पता है ये हाइब्रिड की नस्ल है। जो क्रिश्चियन है उनको भी पता है ये हाइब्रिड की नस्ल है। नहीं पता तो इन मुसलमानों को नहीं पता। ये कहते जाते हैं ये हमारे भाई हैं। ओ भाई, ये अब तुम्हारे भाई नहीं हैं। इन्होंने 691 में अब्दुल मलिक बिन मरवान जो 5वां खलीफा था उसके साथ मिलकर एक तरह से इन्होंने कोशिश करके उनको ट्रैप किया कि हम मुसलमान होकर इस बड़े ग्रुप को, एक जोशीले ग्रुप को, एक इमोशनल ग्रुप को, एक कामयाब ग्रुप को अपने साथ मिला लें और मिलाकर इन यहूदियों पर चढ़ दौड़ें ताकि ये जगह पर हम कब्ज़ा कर लें। क्योंकि ये एक तरह से ये वो किल्ली है जिस पर कभी कोई बिल्ली टांग देते हैं, कभी कोई। आज मुसलमान इनसे इस बात पर बहस करें, इस पर इनकी बात चले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि यार तुम कौन हो? तुम मुसलमान नहीं हो, तुम शरारती सीड हो, तुम हाइब्रिड की नस्ल हो, जो खुदा के रद्द किए हुए लोग हैं, जिनके अंदर से झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, जिनके अंदर से इत्मीनान कभी आने की उम्मीद नहीं है, जिनके अंदर कभी खुशी की उम्मीद नहीं। ये बैठे बैठे, आप देखो ना हमास वालों ने क्या किया। वो आराम से बैठे हैं और दूसरे आए और आके उनके भाई बन गए। वही सेम पाकिस्तान वाली बात, वो आके वहां के लोगों के भाई बन गए और उनको मार पड़वा दी। ये कैसी रिश्तेदारी है? ये कैसा ख्याल है? दोस्त, रिश्तेदार हमेशा एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते हैं, ना कि शरारत करके। तो एक बड़ी पुरानी बात है, मैंने एक ड्रामा देखा था और उस ड्रामे में कोई आया और उस पुलिस वालों ने पकड़ के ले गए। तो वो एक बंदा रास्ते में जा रहा है तो कहता है कि जब पुलिस वाले तुझे पूछे कि कोई तेरा वाकफ़ है तो कहना कि फ़लाँ बंदा मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा वाकफ़ है। अच्छा, पुलिस वालों ने उसको एक रात रखा और थोड़ा बहुत ही सेवा की। अगले दिन उसको पूछा कि हाँ भाई कोई तेरा वाकफ़, तेरा कोई रिश्तेदार, कोई तलकदार? उसने कहा फ़लाँ बंदा है मेरा तलकदार। उन्होंने कहा इन्हू होर लम्मे पाओ, और पटाई हो गई। फिर उसने कहा मैं किसी और का नाम क्या लूँ? उसने कहा वो बड़ा बहादुर है, वो बड़ा दलेर। उन्होंने कहा और फैंटी लगाओ। और जब उन्होंने फैंटी लगा के 2-3 दिन 4 दिन के बाद छोड़ दिया, उसके कुछ रह ही नहीं गया पल्ले, नीलो नील हो गया और जोड़ दर्द कर रहा है। तो फिर बाहर निकल के वो कहता है कि मार गईयां तेरियां वाकफीतां और मार गए तेरे तलक। ये जो अब के हमास हो गया या हज़बुल्ला हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये वो ग्रुप हैं जब भी किसी को मार पड़वानी हो ना तो ये तलकदारी ज़ाहिर कर देते हैं। ये जी हम इसके तलकदार हैं, हम जी इसके वाकफ़कार हैं। भाई अपनी संभालो। तुम यहूदियों के ख़िलाफ़ खड़े हो जबकि कुरान मजीद यहूदियों की इतनी तारीफ़ करता है। कुरान मजीद में यहूदियों के साथ इतना तलक रहा है, वो उनके कारोबार हजूर के साथ रहे, उनके खलीफा के साथ कारोबार रहे और हज़रत अली उनके साथ काम करते रहे।
इस्माइलियों का काम उनके साथ रहा, अब का जो सऊदीया है वो उनके साथ है, अब का जो दुबई है, अबू धाबी, वो सारे उनके साथ हैं, वो काम कर रहे हैं उनके साथ, उनके बिजनेस चल रहे हैं। और एक तुम हो जो उनकी पोलियो की वैक्सीन यूज़ करते हो, वरना तुम्हारे बच्चे लंगड़े लूले होते। तुम उनके गूगल इस्तेमाल कर रहे हो, उनका यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, उनका फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, उनके सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे हो, उनके मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, उनके माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहे हो, उनके लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो। सारा कुछ उनका इस्तेमाल करके भी फिर आप उन पर लानत कर रहे हो। आप अंदाज़ा करो कि जिन लोगों ने इतना कुछ आपको दिया है वो इतने जीनियस हैं, इतने बाबरकत हैं, इतने कामयाब हैं, और आप इतने अच्छे हो, आप इतने खुदा के करीब हो, तो आप अकल से खाली हो। आपसे एक सुई बनी नहीं आज तक। तेल के कुएं हैं तो वो बना के देते हैं, पुल हैं तो वो बना के देते हैं, कोई भी चीज़ बनानी है टेक्निकल तो वो करके देते हैं, मोटरें बनानी है तो वो करके देते हैं। आप सिर्फ बैठे बैठे हमने वो बड़ा कुछ किया, हमने वो बड़ा कुछ किया। चलो वो यहूदियों की कोई बात आ गई, इसराइल की कोई बात आ गई, अमेरिका की कोई बात आ गई, आप अपने घर के लोगों को मारना कूटना शुरू कर देते हो। ये किन की निशानी है? ये दीवाने लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। लड़ाई किसी के घर अपनी बीवी को फेंटी लगा दी, झगड़ा किसी का अपने बच्चों को फेंटी लगा दी, नुकसान किसी का हो गया, अपने बच्चों को कूटना शुरू कर दिया। ये जरा सोचो, समझदारी के साथ बैठो और अपने अकल के नाखन लो, अपने घर को संभालें, अपने खानदान को संभालें। इस तरह की जिंदगी गुजारना सरासर हमाकत है। आपसे लोग चालू हो गए हैं। हम जो यूरोप में, अमेरिका में बैठे हैं, हमारा यहाँ पे जीना मुश्किल हो चुका है। हम किसी को खुशी के साथ बता नहीं सकते कि हम कौन हैं। जब बता दें कि हम पाकिस्तानी हैं, वो 2 कदम हमसे पीछे हट के खड़े होते हैं। वो कहते हैं झूठे ये, फ्रॉडिये ये, 2 नंबर इनके डॉक्यूमेंट, डिग्रियां इनकी 2 नंबर, पढ़ाई इनकी 2 नंबर, इनके तो पायलट भी बगैर ट्रेनिंग के जहाज उड़ाते हैं। कितने रिस्की लोग हैं। इनके तो डॉक्टर भी बगैर स्टडी के ऑपरेशन करते फिरते हैं। किस तरह के रिस्की लोग हैं। बगैर लाइसेंस के ये गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां ड्राइव करते हैं जिनमें 70-80 लोग बैठे होते हैं। कैसे रिस्की लोग हैं। और ये अनपढ़ लोग इनकी दवाइयां बना रहे हैं कि जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं वो दवाइयां बना रहे हैं। जितने अनपढ़ लोग हैं वो कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि ये दवाई लगाएंगे, चेहरे पे क्रीम लगाएंगे, पिंपल्स निकल आएंगे, आंखें किसी की ज़ाया हो सकती हैं, किसी को स्किन का कैंसर हो सकता है ना, परवाह ही नहीं। मजाक बनाया हुआ, दूध में पानी, मिर्चों में सारी फक और पता नहीं क्या क्या गंद मिलाते जाते हैं। जो अपनी नस्ल का ख्याल नहीं करते, वो किसी मुल्क का या किसी नेशंस का या किसी तौर पे किसी शख्स का क्या ख्याल करेंगे। उनका कौन सा खुदा है, वो किस खुदा की इबादत करते हैं। खुदा तो रहीम है, करीम है, मेहरबान है। उसके तो 99 नाम हैं, एक एक नाम पे लाखों सजदे हैं। आप तो हर बात को मजाक समझते हैं। इसलिए इस बात को समझें कि ये आपके रिश्तेदार नहीं हैं, ये आपके दोस्त नहीं हैं। इन्होंने 691 में इस्लाम के साथ धोखा किया है और अब ये पूरी दुनिया, जैसे इनकी सबब से पूरी दुनिया, इनके अबौजदाद के सबब से पूरी दुनिया को खुदा ने ख़त्म कर दिया, और अब इन्हीं के सबब से कोई बड़ी जंग लगेगी जिससे ये दुनिया बर्बाद होगी। और आप लोगों को समझ नहीं आनी और आपने समझना भी नहीं। आप जज्बाती हो और जज्बाती रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते जा रहे हो। और उसी तरह के लीडर हैं, उसी तरह की रिया है, उसी तरह के रहनुमा हैं, सब जज्बाती और झूठी तारीख को समझना। अपनी तरफ से तारीख बनाई हुई है, अपनी तरफ से हिस्ट्री बनाई हुई है, अपनी तरफ से ही बातें बनाई, ये मेरा भाई तो ये मेरी बहन तो ये मेरा वो।
खुदा आपको समझने की तौफीक दे और अपनी कुर्बत और नज़दीकी अता फरमाए। जीते रहें और खुश रहें।